ایشقین یشعر، اپنے قربانی کے جانوروں میں کس جانب اشعار کرے، کس جانب نشان لگائے۔ اشعار کے بارے میں کل آپ کو بتایا گیا کہ یہ سنت ہے، احادیث کریمہ سے ثابت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے کے اشعار سے منع فرمایا ہے، نہ یہ کہ آپ نے مطلقاً اشعار سے منع فرمایا ہو، حاشا وکلا، ایسا بعید ہے ان کی ذات گرامی سے کہ جو چیز رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنن مبارکہ سے ثابت ہو، امام ابو حنیفہ جیسا سچا عاشق رسول اس چیز سے منع فرما دے۔ یہاں پر میں نے کہا تھا کل ضمناً کی کوہان کی نیچے بازو میں ہلکا سا چیرا مارا جاتا ہے کہ خون نکل آئے، بس اسی کا نام ہے شعار، نشانی قائم کرنا، اسی کو عربی میں اشعار کہتے ہیں۔ خون نکل آئے، خون کو وہاں سے صاف کر کے کوہان میں لگا دیا جائے، بس یہ ہو گئی، نشانی قائم ہو گئی۔ تو دور سے خون جب نظر آ جاتا ہے کوہان پر تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ قربانی والا جانور ہے، یہ کوئی معمولی جانور نہیں ہے۔ اس سلسلے میں روایت دیکھیے، اخبرنا مجاہد بن موسیٰ عن حشیم عن شعبۃ عن قتادہ عن ابی حسان الاعرج عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشعر بدنۃ، بدنۃ پڑھیں تو یہ مفرد ہو جائے گا، بدنہ پڑھیں تو یہ جمع ہو جائے گا۔ جمع کے لیے عام طور سے تا کے بغیر بدنن اور بدنن استعمال ہوتا ہے، اور مفرد کے لیے بادانہ بفتحتین۔ کیونکہ بڑے جانوروں کو بدنہ کہا جاتا ہے، اونٹ اور اونٹنی، گائے اور بیل، اور پھر اسی طریقے سے ہندوستان اور پاکستان میں بھینسیں پائی جاتی ہیں، بھینس بھینسا، ان سب پر بدنہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ بکری، مینڈھا، دمبا، ان پر بدنہ کا اطلاق نہیں ہوتا چونکہ ان کا بدن چھوٹا ہوتا ہے۔ بدنہ یہ بدن سے بنا ہے، بدن جن جانوروں کے بڑے ہوتے ہیں، ضخیم جو جانور ہوتے ہیں ان پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ علی العموم اونٹ اور اونٹنی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، بادانہ۔ وسلط الدم عنها واشعرها، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قربانی کے جانور کا اشعار کیا داہنی جانب سے، یعنی کوہان کے داہنی جانب سے اشعار کیا، یا کوہان کے داہنی جانب نشانی لگائی اور خون کو صاف کیا، اشعرها، اور اس کو بطور نشانی کے قائم کیا، یعنی جانور پر نشانی لگا دی۔ داہنی جانب اشعار کیا، خون کو صاف کر کے نشانی لگا دی۔ اشعرها کا معنی یہی ہے کہ خون زخم کے مقام سے صاف کر کے اس کو کوہان پہ لگایا بطور نشانی کے۔ سلط الدم، یہ باقاعدہ باب ہی آ رہا ہے، باب سلط الدم عن البدن، بدنی یا بدنی۔ یہاں بین السطور میں بدن بضم فسکون، ضمے اور اس کے بعد سکون کے ساتھ، اور لغت میں آپ کو بدن بھی ملے گا، تو بدن اور بدنن دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے بفتحتین، وہی الابل والبقر عندنا، اور ہندوستان میں جو کالے کالے جانور پائے جاتے ہیں جن کو آپ بھینس یا بھینسا کہتے ہیں، ان پر بھی بقر کا اطلاق ہوگا۔ ویسے تو بقر کا اصل اطلاق ہوتا ہے گائے اور بیل پر، بقر کا اطلاق ہوتا ہے، مگر فقہاء کرام نے گائے ہی کی قسم میں بھینس کو بھی شامل کیا ہے، لہذا احادیث کریمہ میں اگرچہ آپ کو کہیں بھی بھینس کا ذکر نہیں ملے گا، جاموس، مگر قربانی کے لیے جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا بھی ہے۔ ایک بدبخت زمانہ مردود نے ایک کلک بنائی اور کہا کہ یہ بھینس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، پاکستان کا ہے کہ جس نے بھینس کی قربانی کی اس کی قربانی قبول نہیں۔ وہی کہتا ہے کہ بھینس کا ذکر کہیں حدیث پاک میں ہے نہیں، نہ قرآن مقدس میں ہے، نہ حدیث پاک میں ہے، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، تو بھینس کی قربانی کیسے ہو جائے گی؟ سمجھا؟ اس بدبخت سے کوئی کہے کہ ارے کیا صحابہ کے زمانے میں عرب شریف میں بھینس پائی جاتی تھی؟ عجمی جانور ہے، جب عربی جانور ہے ہی نہیں، عجمی جانور ہے، تو بھینس کو تلاش کرنا عرب میں جا کر یہ سوائے حماقت تو کیا ہے؟ فقہاء کرام وہ اندھیروں میں اور تاریکی زمانے میں نہیں تھے،
उनको अल्लाह ने इल्म दिया था, समझ दी थी, उनके अंदर इल्मी गहराई मौजूद थी, उन्होंने गौर फिक्र किया तो भैंस के अंदर वो सारी खूबियां पाई जो गाय के अंदर होती हैं, इसलिए उन्होंने उसको उसी के साथ जम कर दिया। तो बकर का इतलाक भैंस पर भी होगा। बहरहाल हदीस पाक देखें, बिल्कुल बाप का माना भी जाहिर है और उसके नीचे आने वाली हदीस पाक का माना भी बिल्कुल जाहिर है। तेजी के साथ पढ़ूंगा मैं ताकि आधा सफ़ा कम से कम हो जाए। अखबरना अम्र इब्न अली क़ाल हद्दसना यहया क़ाल हद्दसना शुअबा अन क़तादा अन अबी हस्सान अल-अरज अन इब्न अब्बास अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना लम्मा काना बिदुल हुलैफा अमरा बिबदानतिही फउशिरा फी सनामिहा मिन अश-शिक़्क़िल अयमन। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल हुलैफा में थे, यानी हज्जतुल वदा के मौके पर, तो आपने अपने बदना, अपनी कुर्बानी के जानवरों के बारे में हुक्म दिया तो उनके कोहान में दाईं जानिब से इशार किया गया। अब ऊपर अशारहा है, अशारा बदनतम मिनल जानिबिल अयमन, यानी खुद हुजूर ने किया, गोया की निस्बत हकीकी थी। यहाँ हुजूर ने हुक्म दिया, उनके हुक्म से इशार किया गया, तो कोई तज़ाद नहीं है, क्योंकि कुर्बानी के जानवर बहुत ज़्यादा थे। मैंने बताया कि 50 से ज़्यादा, बल्कि 60 से भी ज़्यादा जानवर खुद हुजूर ने अपने हाथों से अपने जानवर ज़बह फरमाए थे। उसके बाद अली को मौला कायनात को दे दिया, उन्होंने उसमें उनके जानवर भी थे। हज़रत अली मौला कायनात और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के जानवर मिलकर तकरीबन 100 जानवर पहुंच रहे थे। तो कोई बात नहीं, हुजूर ने अपने चंद जानवरों का शिआर खुद किया हो, बाकी हुक्म दे दिया हो। तो हुजूर ने, जब हुजूर जुल हुलैफा में थे तो कुर्बानी के जानवरों के बारे में आपने हुक्म दिया, तो आपके हुक्म से उनके कोहान में दाहिनी जानिब इशार किया गया। सनाम इसकी जमा असनेमा आती है। और फिर हुजूर ने खुद उनका खून साफ किया। वक़ल्लदहा नालैन, और 2 नालैन का क़िलादा डाला, हार में 2 नालैन लटका कर गर्दन में डाल दिया, गले में डाल दिया। पुरानी नालैन होती थी, कोई स्पेशली नालैन नहीं खरीदी जाती थी। इस्तेमाल शुदा पुरानी जो नालैन जो नाकाबिल इस्तेमाल होती थी, उनको ऊँटनी या ऊँट के गर्दन में डाल दिया जाता था, बस ये कि अलामत हो जाए कि ये क़िलादा पड़ा हुआ है, इसका शिआर हुआ है, ये आम जानवर नहीं, कुर्बानी के जानवर है। उसके साथ फिर वही मामला किया जाए। फलम्मस्तवत बिही अलल बैदा अहल्ला, फिर जब आपकी ऊँटनी आपको लेकर बैदा में खड़ी हो गई, अहल्ला आपने इहराम पहना, यानी तलबिया पढ़ा। इससे पहले हदीस पर गुजर चुकी, इससे पहले हुजूर ने जुल हुलैफा में तलबिया पढ़ लिया था। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से भी 1-2 रवायत इस तरह की गुजरी हैं। मगर यहाँ कह रहे हैं कि मकाम बैदा में जब रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कस्वा नामी ऊँटनी पर बैठ गए और ऊँटनी आपको लेकर खड़ी हो गई, तब आपने तलबिया पढ़ा। तो हो सकता है कि वहां भी तलबिया पढ़ते देखा हो तो वो भी रवायत कर दिया, यहाँ भी तलबिया पढ़ते देखा, ये भी रवायत कर दिया। खानदान के थे, सगे चचेरे भाई थे, तो इनको साथ में रहने का ज्यादा शरफ हासिल हुआ होगा। यहाँ पर जिस ऊँटनी पर सवारी की बात हो रही है, वो ऊँटनी नहीं थी जिसका बदला, जिसका शिआर किया गया था, वो कुर्बानी के जानवर थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बानी के जानवरों को सवार नहीं हुए थे, आपके सवारी की ऊँटनी अलग थी जिसका नाम कस्वा है। जानवरों के बारे में आपको देखना हो कि पैगंबर आजम के कितने जानवर थे जिनको आप बतौर सवारी का इस्तेमाल फरमाया करते थे या बतौर खिदमत के। तो अल्लामा करम शाह अज़हरी साहब ने इसको लिखा है, आप देखेंगे उसमें मिल जाएगा आपको। हुजूर की पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में भी वहाँ गुफ्तगू मौजूद है इस किताब के अंदर, ज़ियाउन नबी के अंदर। सीरत की कोई एक किताब जो मुतवस्सित हो, मुकम्मल पढ़ डालें आप कम से कम फरागत से पहले। ज़ियाउन नबी थोड़ी ज़ख़ीम हो जाएगी, तो आप सीरत मुस्तफ़ा पढ़ लें आप, मुतवस्सित है वो, 1 जिल्द में है। मेरी तो बहुत छोटी हो, तो मैंने आवाम के लिए लिखा है इख्तिसार के साथ। ये मोटी नहीं तो पतली पढ़ डालें, कम से कम मोटी मोटी बातें दिमाग में आ जाएं। और एक सीरत रसूल अरबी है, इतनी ज़ख़ीम है जितनी अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी की है, उतनी ही सीरत रसूल अरबी वो जल्दी दस्तियाब नहीं होती, आप तलाश करो, कहीं मिले तो उसको मंगवा लो। मैंने उसको एक लाइब्रेरी में देखा है। अल्लामा क्या नाम उनका, तवक्कुल बख्श, इंडिया के बहुत जय्यद आलिम दीन गुजरे हैं। ये उनका ज़माना आला के ज़माने से थोड़ा गासा गालिबन पहले है या कुछ आसपास का ज़माना है। उर्दू भी उसी लिहाज से हुई होगी, इसकी उर्दू तो बहुत ज़बरदस्त है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब की जो उर्दू है बहुत ज़बरदस्त है। तो वो किताब हमने देखी लाइब्रेरी में, तो उस वक्त हमने तहैया किया था कि सीरत रसूल अरबी मंगाएंगे, देखेंगे इसमें क्या है। दस्तियाब नहीं हो रही, कहीं मिले तो उसको मंगाइए। फतलुल क़लाइद, क़िलादा की जमा क़लाइद है।
पट्टों को तैयार करना, हार को तैयार करना। फतला यफ्तल को माना बटना और बुनना होता है, ऊन से या रुई से बटकर पट्टे या हार तैयार किए जाएं, इसके लिए लफ्ज़ फतल इस्तेमाल होता है बाब ज़रबा से। क़िलादा की जमा क़लाइद है। इस सिलसिले में तसलसल के साथ कई रवायतें आ रही हैं और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायतें हैं। अख़बरना क़ुतैबा क़ाल हदसना अल्लैस। अब ये सारी रवायतें पढ़ने वाली हैं क्योंकि वो ज़माना पहले, सदियों पहले ज़माना ख़त्म हो गया है। आज आपको ऊँटनी देखने को नहीं मिलेगी। सवारी तो बहुत दूर की बात है, इशारा करना तो बहुत दूर का, आप देख ले तो बहुत बड़ी बात है। खुद अब हमने अपनी ज़िंदगी में, यहाँ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अरब की नहीं, वहाँ तो बहुत देखा माशाल्लाह। यहाँ इंडिया की अपनी ज़िंदगी में, इंडिया में सिर्फ एक बार देखा है ऊँटों को, ऊँटों के कतार को देखा था एक मकाम पर। और मैं क्या न जाने कहाँ कहाँ से लोग देखने आए थे सिर्फ ऊँटों को देखने के लिए। नहीं मिलते, इंडिया में होते ही नहीं। अरबी जानवर है, यहाँ बहुत कम दस्तियाब है। लोग शौकिया तौर पर रखते हैं या खरीदते हैं, बेचते हैं। आमतौर से यहाँ इंडिया में ऊँट की कुर्बानी नहीं होती। कहाँ से करेंगे, पैसे ही नहीं इतना। और जिनके पास जानवर है बहुत महंगे होते हैं, समझे। काली कलौठी भैंस की जो कीमत है ये 60-60 हजार, 70-70 हजार। तो ऊँटों की कीमत समझ लें आप कितनी होगी। जो जानवर यहाँ दस्तियाब अवेलेबल, जो हमारे इंडिया के या एशिया के जानवर हैं, वो इतनी कीमती हैं। तो जो अरबी जानवर जो यहाँ आमतौर से दस्तियाब, इनकी कीमत क्या होगी इसका अंदाजा कर सकते हैं। तो पढ़ने वाली हदीस इनको आप पढ़ डालें खाली बस। अख़बरना क़ुतैबा क़ाल हदसना लैस अन इब्न शिहाब अन उर्वा व अमरता बिन्त अब्दुर्रहमान। इब्न शिहाब ज़ुहरी हज़रत उर्वा से रवायत करते हैं और हज़रत उर्वा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के क्या हैं, बता चुका हूँ बार बार, भांजे हैं। और अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान से रवायत करते हैं। अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान कौन है, बोलिए, भतीजी हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान भाई हुए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के, उनकी बेटी हैं। तो क्या हुए, भाई की लड़की क्या होगी, भतीजी होगी। अन आयशा अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहदी मिनल मदीना फाफ्तलु क़लाइदा हदियही। कहती हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने मुनव्वरा से कुर्बानी के जानवर रवाना फरमाया करते थे। तो मैं उनकी कुर्बानी के जानवरों के पट्टों को और हारों को तैयार किया करती थी। यानी हज्जतुल वदा से पहले जब मक्कतुल मुकर्रमा फतेह हो गया सन 8 हिजरी में, तो सन 8 हिजरी में, फिर उसके बाद सन 9 हिजरी में, 8 हिजरी में तो ऐसे ही हज हुआ, बाकायदा हज फर्ज नहीं था। यानी तहकीकी जो कौल है, वरना तो 5 का भी कौल है, 4 का भी कौल है, 6 का भी कौल है। शुरू ही में जहाँ से किताब मनासिक शुरू हुआ है वहाँ से देखिएगा कि हज किस सन में फर्ज हुआ है। तो हमने बताया था शुरू में कि राजिह कौल ये है कि सन 9 हिजरी में हज फर्ज हुआ है और उसी साल अमीर अल हज बनाकर हज़रत सिद्दीक़ अकबर भेजे गए थे। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं ले गए थे, सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ले गए थे, मौला कायनात तशरीफ ले गए थे, दीगर सहाबा किराम तशरीफ ले गए थे। तो हुजूर ने अपने कुर्बानी के जानवरों को भेज दिया था और एक दुनिया बहुत से जानवरों को भेजा था। उन जानवरों के हार हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने तैयार किया था। मसला यह था, कोई अपने वतन में हो और कुर्बानी के जानवरों को भेजे तो महज कुर्बानी के जानवरों को भेजने से उस पर इहराम की पाबंदी लाजिम नहीं होती। इहराम की पाबंदी के लिए 3 शर्तें हैं जो हाशिया के अंदर मज़कूर हैं। इब्न हुमाम ने फरमाया है 3 शर्तें हैं। एक तो ये अफाद अन्नहु लाबुद्दा मिन सलासे उमूरिन अत-तक़लीद व तवज्जुह मअहा व निय्यतुन नुसुक। 3 चीजें जरूरी है मुहरिम होने के लिए। एक तो क़िलादा डालना, उसके बाद जानवर के साथ जाना और इबादत की नियत करना, तब जाके इहराम की पाबंदी लाजिम होती है। अब इंसान अपने वतन में कुर्बानी के जानवरों को भेज रहा है बतौर कुर्बत हासिल करने के लिए, तो महज भेज देने से या क़िलादा डाल देने से इहराम की पाबंदी लाजिम नहीं आती है। ये जितनी भी रिवायतें आ रही हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इन तमाम रिवायतों में रद्द कर रही हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का। कहाँ है वो लोग जो रद्द की मुखालफत करते हैं, रद्द नहीं करना चाहिए, रद्द नहीं करना चाहिए। अरे जहाँ भी किसी से गलती होगी, चाहे वो इज्तिहादी गलती ही क्यों ना हो, सही मौक़िफ़ बयान किया जाएगा रिवायतों की रोशनी में। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मौक़िफ़ ये था, उन्होंने किसी को फतवा भी दिया था कि जो इंसान क़िलादा डाल दे जानवरों में और क़िलादा डालकर हार डालकर जानवर को हरम रवाना कर दे कुर्बानी करने के लिए, तो जब तक वो जानवर वहां पहुंचकर हलाल नहीं होगा तब तक ये इहराम की पाबंदी इस पर लाजिम जरूरी होगी। तो गोया कि जानवर भेजने से भी पाबंदी लाजिम इहराम की हो जाती है। उन्होंने फतवा ये दिया, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को मालूम पड़ा तो उन्होंने करनी गलत है। ये मैं खुद तैयार करती थी, अपने हाथों से क़िलादे तैयार करती थी और हुज़ूर रहमत आलम जाने आलम क़िलादा डालकर
जानवरों को रवाना फरमा देते, उसके बाद अब हलाल होकर मदीना मुनव्वरा में रहते, पाबंदी नहीं करते थे। तो इससे मालूम है कि पाबंदी लाजिम नहीं है। तो आपने रद्द किया, जैसे पीछे गुजरा के हते उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इज्तिहादी गलती हो गई, उन्हीं की इताअत और पैरवी में हते उस्मान गनी से इज्तिहादी खता हुई। दोनों इबादतों को जमा करने के सिलसिले में हते अली ने रद्द किया, दीगर सहाबा इकराम ने कहा कि सुन्नत की मुखालफत कर रहे हैं, और बाद के हमारे उलमा ने भी फरमाया कि उनसे इज्तिहादी चूक हुई। हते उमर फारूक आजम से हो सकता है, ये हते अमीर मुआविया से इज्तिहादी चूक हुई, बहुत से सहाबा इकराम से इज्तिहादी चूक हुई है। तो यहाँ देखें आप, तो कोई बहुत बड़ी शान वाला हो और उससे एक दो मकाम पर इज्तिहादी चूक हो जाए तो उसकी शान से घटती नहीं है। हते अब्दुल्ला इब्न अब्बास हब्रुल उम्मा है, उम्मत के बहुत बड़े आलिम हैं, और खुद आक़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने कुल्ली फरमाई, उनके मुंह पर कुल्ली फरमाई, उनको बरकत मिल जाए, सीने पर हाथ मारा और दुआ फरमाई कि अल्लाह इसके दिल को कुशादा फरमा दे। तो बहुत बड़े आलिम दीन थे, फारूक आजम उससे मशवरे मांगा करते थे, बल्कि लोगों ने इतराज तक किया कि बताइए हम अकाबिर हैं, अशराफ हैं, सीनियर हैं, जब आप मशवरा लेते हैं तो ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास आके बैठ जाते हैं, वो नौजवान हैं, उनका यहाँ क्या काम, और अगर आते नहीं तो पीछे बच्चों में जाके बैठे, बड़े बड़े लोगों में बैठ जाते हैं। तो फारूक आजम ने कहा कि वो चीज जो उनके पास है तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए मैं उनसे मशवरा मांगा करता हूँ। फिर उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू लिया अब्दुल्ला इब्न अब्बास का, किसने, हज़रत उमर फारूक का, एक सवाल कर लिया और कोई सहाबी जवाब नहीं दे पाया, जवाब दिया था अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने दिया, और कहा कि देखा मैं कहता था ना कि इनके पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो अगरचे उम्र में छोटे हैं मगर इल्म इनका बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इनसे मशवरे लिया करता हूँ। इनको भी मजलिस में मौका मिलता है, जिस मकाम पर अली मौला कायनात जैसी अजीम शान हस्तियां होती हैं उस मकाम में उनको भी मौका मिलता था, मगर उनसे भी चूक हो गई, इज्तिहादी गलती हो गई। देखिए हाशिए के अंदर मौजूद भी है। तो ये आज के जमाने में अगर कोई इंसान किसी बड़े आलिम दीन के बारे में कह दे कि फला फला से गलती हो गई, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं, ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं फला साहब तो महफूज उनसे गलती नहीं हो सकती, फला साहब ऐसे उनसे गलती नहीं हो सकती है। ये उसूल शरा के खिलाफ है और ये शरीय हुदूद से फलांग जाना है। हमारे तुम्हारे पीर की बात नहीं, मैं और उनसे ऊंचे लोगों की बातें कर रहा हूँ। किबारे उलमा अदब एहतराम माने, वरना मैं नाम भी तो लोगों का ले लेता, लेकिन हमारा मिजाज ऐसा नहीं है कि मतलब बिला वजह किसी का नाम लेकर के और गलती की निस्बत कर दीजिए। कोई हाजत नाम लेने की नहीं, मगर इतना समझ लें आप कि गलती, इज्तिहादी गलती किसी से भी हो सकती है। इज्तिहाद में, इस्तिंबात में, इस्तिखराज में, कयास करने में किसी से भी चूक हो सकती है, कसे बाशत। ये शान तो फरिश्तों की है और नबी और रसूलों की है कि वो मासूम हैं, या फिर उनके सदक़े में जिनको अल्लाह ने महफूज फरमा दिया। समझा, जैसे हसनैन करीमैन हैं, हज़रत फातिमा ज़हरा हैं, हज़रत अली शेर खुदा मौला कायनात हैं, सिद्दीक़ अकबर, इस जैसी हस्तियां ये चंद लोगों की हैं। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप मुबालगा आराई ना करें और तशद्दुद का शिकार कहीं ना हो जाएं। साफ तलो कलायदा हद यही, तो मैं खुद अपने हाथों से उनके कुर्बानी के जानवरों के कलादे तैयार किया करती थी या तैयार करती। सुम्मा ला यजतनिबु शयअम मिम्मा यजतनिबुल मुहरिम, फिर हुजूर उन चीजों में से किसी चीज से भी इज्तनाब नहीं फरमाते जिसे मुहरिम इज्तनाब करता है। नाम लिए बगैर रद है ये, तो हर जगह नाम लेने की हाजत भी नहीं है। जहां बहुत ज्यादा शरई हाजत पेश आ जाए मुहज़्ज़ब अंदाज में, अगर सामने वाला आपका हम मसलक है, आपसे बुजुर्ग है या मुआसिर है, मगर अकीदे में का कोई मसला नहीं है, फिक़ही मामलात है, तो नाम लेने की ऐसी कोई हाजत, और नाम लेने की हाजत भी हो तो बस मुहज़्ज़ब अंदाज में उसका नाम लिया जाए, शाइस्तगी का दामन न छोड़ा जाए, उसकी इज्जत के परखचे न उड़ाए जाए, जैसा कि आज हो रहा है हमारे उस्ताद ग्रामी मुहक़्क़िक़ मसाइल जदीदा हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब क़िबला के साथ। वो तो कहते भी कि हमारे मसाइल जो मुस्तंबत हैं फतवा रज़विया शरीफ से, आके बात करो हमसे, सामने बैठे आकर के, मगर फिर भी जो है मुफ्ती शमशाद साहब वगैरह जो है उनका नाम लेकर कीचड़ उछालने में न जाने को फख्र महसूस करते हैं। ये इस्लामी मिजाज नहीं रहा है, और न किताबों से मिजाज मिलता है हमें, पता नहीं लोग कौन सी किताब पढ़ के आए हैं।